یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ 2 جنوری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ ایران میں احتجاج کا 5واں دن، جھڑپوں میں مزید ہلاکتیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اپنی روایت کے مطابق پرامن مظاہرین کو قتل کیا تو امریکہ انہیں بچانے کے لیے آگے آئے گا۔ ایران کے اندرونی معاملے میں مداخلت خطے میں انتشار اور امریکی مفادات کی تباہی کا باعث بنے گی۔ علی لاریجانی کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ سوئٹزرلینڈ کے حکام نے کہا ہے کہ شراب خانے میں آتش زدگی کوئی حملہ نہیں تھا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی، پاکستان کی غیر جانبداری کا چیلنج۔ 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں پاکستان کی عدالت نے صحافی اور یوٹیوبرز کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ جانیے فوجی افسروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان کی لاش قبر سے کیوں نکالی گئی؟ انڈیا میں مذہبی ایجنڈے کے تحت غیر مسلموں کے ختنے کروانے کا الزام۔ یہ بھی جانیے کہ سوات میں سرینا ہوٹل سے 40 سال بعد وزیر ہاؤس کی تاریخی عمارت کیوں واپس لے لی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی لیز نئی کے پی گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کی، 40 سال کی لیز تھی، وہ 40 سال بعد ختم ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے 2 MPs کو، فضل حکیم کو اور اختر خان کو وہ دینا چاہتے ہیں۔ جانیے علم، عشق اور تہذیب کا سنگم لاہور ہر دن نیا کیوں لگتا ہے۔ سیانے آخدے نے او پیڑے خواب دی ہوندی تعبیر چنگی۔ سنیے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ دھرندر کا پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر یا پروڈکشن ٹیم کا کوئی بھی ممبر کبھی کراچی آئے تو اپنے رسک پر آئے۔ اور ملیے بچی کے ساتھ جنگل میں کام کرنے والی وائلڈ لائف رینجر سے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں اور موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں جاری احتجاج کے 5ویں روز بھی کشیدگی کم نہ ہو سکی اور مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ نیم سرکاری نیوز ایجنسی اور انسانی حقوق کی تنظیم ہنگاؤ کے مطابق جنوب مغربی شہر لارڈیگن میں 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مغربی علاقوں ازنا میں 3 اور کوہ دشت میں 1 شخص کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں مظاہروں کے دوران گاڑیاں نظر آتش کیے جانے اور شدید جھڑپوں کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے سپریم لیڈر کی حکمرانی کے خاتمے اور بعض مقامات پر بادشاہت کی بحالی کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ BBC فارسی کے مطابق احتجاج تہران، لارڈیگن اور کوہ دشت سمیت کئی شہروں تک پھیل چکا ہے۔ حکام نے بدھ کے روز ملک بھر میں اسکول، یونیورسٹیاں اور سرکاری دفاتر بند کر دیے تھے، جسے حکومت نے توانائی بچانے کا اقدام قرار دیا۔ تاہم عوامی حلقوں میں اسے احتجاج دبانے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مظاہرے ابتدا میں ایرانی کرنسی کی قدر میں شدید کمی اور معاشی بدحالی کے خلاف شروع ہوئے تھے، جو اب وسیع تر سیاسی احتجاج کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد اور قتل کا سلسلہ جاری رہا تو امریکہ مظاہرین کی مدد کے لیے آگے آئے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی ایران میں مظاہرین کے خلاف تشدد، گرفتاریوں اور دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنیادی حقوق کا مطالبہ جرم نہیں۔ دوسری جانب ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج کے دوران مختلف شہروں میں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात सुनने का इंदिया दिया है, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इसे अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार देते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द अमल देते हुए इसे अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अली लारिजानी का कहना था कि अमेरिकी सदर के बयान से अब पस पर्दा कहानी वाज़े हो गई है। उन्होंने लिखा कि इस्राएली हुकाम और ट्रंप के मौक़िफ़ के साथ इस वाक़े का पस मंज़र वाज़े हो गया है। हम एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ को तखरीबी अनासर से अलग समझते हैं। स्विट्ज़रलैंड के हुकाम का कहना है कि ताहाल आतिशज़दगी की मुमकिन वजूहात के बारे में तहकीकात जारी हैं। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक स्की रिजॉर्ट के शराब खाने में किसी हमले या धमाके के नतीजे में आग नहीं लगी थी। अब तक हुकाम को ये मालूम नहीं हो सका है कि बार में कितने लोग मौजूद थे जब आतिशज़दगी हुई। अटॉर्नी जनरल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन क्यास आराइयों के बारे में भी पूछा गया कि आया आतिशज़दगी शैंपियन की बोतलों पर आग लगाने से हुई, क्योंकि बाज़ ऐनी शाहिदीन ने यह दावा किया था कि शैंपियन की बोतलों पर सालगिरह की मोमबत्तियां जलाई गई थीं, जिससे छत पर आग लगना शुरू हुई। जबकि बाज़ ने दावा किया है कि शराब खाने की सीढ़ियां बहुत तंग थीं, जिसकी वजह से वहां से निकलने में मुश्किलात हुई। अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में कहा कि चूंकि तहकीकात जारी हैं, लिहाजा वो किसी अफवाह की तस्दीक नहीं कर सकती। उनका यह भी कहना था कि उन्हें यह इल्म नहीं कि शराब खाने के मालकान का ताल्लुक किस मुल्क से था। ताहम उनका कहना था कि शराब खाने की सीढ़ियां बज़ाहिर तंग हैं, लेकिन तफ्तीशकार ये जायजा लेंगे कि आया ये इमारत कवायद व ज़वाबित के मुताबिक थी या नहीं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन यमन में अलहदगी पसंद गिरोह की पुश्त पुनाही के मामले पर पैदा होने वाली कशीदगी फिलहाल कम होती नजर आ रही है, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि यह वक्ती सुकून है और मुस्तकबिल में किसी और मामले पर दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहाद ने यमन में किए गए एक फिजाई हमले में यूएई से आने वाले मुबैना हथियारों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया, जिस पर यूएई ने अपनी अफवाज वापस बुलाने का ऐलान किया। इस कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दोनों ममालिक से राब्ते किए और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूएई के सदर से रहीम यार खान में मुलाकात की, जबकि नायब वजीर आजम ने सऊदी वजीर खारजा से राब्ता किया। पाकिस्तान के तज्जियाकारों के मुताबिक दोनों खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात और इक्तिसादी इन्हिसार की वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं रह सकेगा। सऊदी अरब के साथ मौजूदा हालिया दिफाई मुआहिदा और यमन में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की अहम जिम्मेदारियां पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुतासिर कर सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि कशीदगी कम हो, लेकिन अगर तनाज़ा बढ़ गया तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अपने दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बुनियाद पर मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। मजीद ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम मामलात में पाकिस्तान की बजाय भारत को ज्यादा अहमियत दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए गैर जानिबदार रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बढ़ते हुए इख्तलाफात की वजह मुख्तलिफ इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, खास तौर पर यमन, अफ्रीका और बहरा अहमर में असर रसूख के मामलात पर। तज्जियाकार इजाज हैदर के मुताबिक अगर कशीदगी शदीद हो गई तो आलमी ताकतें खास तौर पर अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा, ताकि अरब ममालिक के दरमियान बराह रास्त लड़ाई ना हो। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान तनाज़ा आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब जानते हैं तज्जियाकार एजाज हैदर से। जो जदीद यमन है वो तारीखी तौर पर जो है वो शुमाल में जो कि यमन अरब रिपब्लिक थी, सना उसका जो है वो दारुल हुकूमत था, और जुनूब में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन जिसको कहा जाता था, और उसका जो दारुल हुकूमत था वो अदन था। हम्म तो ये जो जुनूब की जो रियासत थी ये मार्क्सिस्ट थी, और ये वाहिद अरब जो है वो मेंबर थी जो कि सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थी। 1990 में ये इकट्ठे हुए हम्म और उसमें रिपब्लिक ऑफ यमन बन गई, और सदर जो थे अली अब्दुल्ला साले,
جو کہ شمالی یمن کے صدر ہوتے تھے. بٹ ہوا یہ کہ یہ اکٹھے تو ہو گئے، لیکن یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شادی تھی جو کہ میرج آف کنوینئنس تھی. اس میں کوئی ان کی جو آرگینک انٹیگریشن تھی وہ نہیں تھی. اور یہ جو جنوب کے جو لوگ ہیں یہ بعد میں بھی یہی بات کرتے رہے کہ یہ سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ مارجنلائز ہیں، اور واٹ دے ریفر ٹو ایز دا ناردرن ایلیٹ. پھر یہ 1994 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور انہوں نے جو جنوب کے جو لیڈران تھے، انہوں نے جی 1994 میں کہا کہ جی ہم تو علیحدہ ہو رہے ہیں. تو سالے کی جو شمالی جو فورسز تھیں، انہوں نے جو اسلامسٹ ملیٹنٹس تھے، اس کے علاوہ جو قبائلی ان کے جو حمایتی تھے، انہوں نے یہ جو علیحدگی پسندی کی تحریک تھی نا، اس کو انہوں نے کرش کر دیا. اور اس سے جو شمال کی جو ایک ڈومینیشن تھی وہ انٹرینچ ہو گئی. تو وہ انٹرینچ تو ہو گئی، وہ موومنٹ جو تھی وہ بھی اس کو بھی دبا لیا گیا، لیکن اس سے ایک لیگیسی کریٹ ہو گئی جنوب کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو شکایات، گلے شکوے، سدرن گریونس گاٹ انٹرینچ، سو دیر واز اے لیگیسی آف دیٹ. پھر اس کے بعد یہ ہوتی جو ہے تحریک شروع ہو گئی، یہ سادہ یہ پروونس جو ہے شمال میں، اور یہ 2000 میں جو ہے وہ ایمرج کیے. اور انہوں نے صالح کی حکومت کے خلاف لڑائی کی. دے ایکیوزڈ اٹ آف کرپشن آلسو. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ صالح کی حکومت تو کٹ پتلی ہے سعودی عربیہ کی اور امریکہ کی. پھر 2011 میں آپ کو یاد ہے یہ عرب سپرنگ شروع ہوئی، which ultimately proved to be a false dawn. اور اس میں جو یہاں پہ بھی بہت سارے جو ہے وہ میس پروٹیسٹ ہوئے، تو صالح جو ہے وہ ریزائن اس نے کیا. یہ باضابطہ گلف کوآپریشن کاؤنسل کی ایک بروکر ڈیل تھی، اور یہ عبدالرب منصور ہادی کے پاس جو ہے وہ حکومت چلی گئی. اب یہ جو ایک ٹرانزیشن تھی، اس میں بھی بہت ہل جل ہوئی، اور ہوتیز جو ہیں انہوں نے باضابطہ جو یہ ڈسکنٹینٹ تھا اس کو ایکسپلوئٹ بھی کیا. اور اس وقت یہ صالح کے ساتھ جو ان کا پرانا دشمن تھا، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ جنوب کی طرف آئے سادہ سے، اور وہاں سے یہ جو اب کی جو خانہ جنگی ہے اس کا آغاز ہوا. تو ہوتیز نے صنعا کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا ستمبر 2014 میں، اور انہوں نے ہادی کو جو ہے وہ گھر میں نظر بند کر دیا، اور ٹھیک پارلیمان جو تھی وہ بھی تحلیل کر دیا. تو ہادی وہاں سے عدن سے بھاگا 2015 میں. اس کے بعد وہ سعودی عرب جو ہے وہ چلا گیا، اور ہوتی جو تھے وہ جنوب کی طرف ایڈوانس کر گئے. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سعودی اور اماراتی جو ہے وہ انٹرونشن شروع ہوئی. صحیح. اور مارچ 2015 میں جو ہے وہ سعودی عربیہ کی یہ ایک جو کولیشن جو تھی، جس کے اندر یہ اماراتی بھی شامل تھے، انہوں نے انٹروین کیا ہادی کی درخواست پہ، essentially to restore the what Hadi called the legitimate government. صحیح. اعجاز حیدر، آپ کا شکریہ. سامعین، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے الزام میں صحافی اور یوٹیوبر صابر شاکر، عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، معید پیرزادہ سمیت دیگر ملزمان کو 2 بار عمر قید اور لاکھوں روپے کے جرمانے کی سزا سنا دی ہے. جمعے کے روز عدالت نے ٹرائل مکمل ہونے پر پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں بھی سنائی ہیں. اپنے فیصلے میں عدالت نے ملزمان کو مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے. یاد رہے کہ یہ مقدمہ 9 مئی 2023 کو ریاستی اداروں کے خلاف کی گئی ڈیجیٹل دہشت گردی سے متعلق تھا، جس میں ملزمان نے مختلف آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ملک کی سلامتی اور عوامی نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. پراسیکیوشن کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا. واضح رہے کہ اسلام آباد کے تھانہ آپارہ کے مقدمہ میں صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ تھانہ رمنا کے مقدمے میں شاہین سیبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو بھی سزا سنائی گئی ہے.
अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल को मुकम्मल किया। इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी जबकि मुल्जमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए। गुलफाम गुराया को अदालत की जानिब से मुल्जमान का वकील मुकर्रर किया गया था। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जमान की अदम मौजूदगी में भी ट्रायल किया जा सकता है। बांग्लादेश के साबिक सदर जियाउर रहमान को 23 मई 1981 को चिटागोंग में फौजी बगावत के दौरान कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के फौरन बाद उनकी लाश को खुफिया तौर पर दफन कर दिया गया, लेकिन 1 जून को फौजी अफसर ब्रिगेडियर हन्नान शाह और उनकी टीम ने एक अंदाजे की बुनियाद पर खुदाई करके जियाउर रहमान और दीगर 2 फौजी अफसरों की लाशें बरामद की। उनकी मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए दारुल हुकूमत ढाका पहुंचाकर पार्लियामेंट हाउस के करीब सुपुर्दे खाक किया गया और अब तकरीबन 44 साल बाद जियाउर रहमान की अहलिया और साबिक वजीर आजम बांग्लादेश खालिदा जिया को भी उसी कब्र के करीब दफन कर दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक जियाउर रहमान को सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया था और पार्लियामेंट के अहाते के करीब कब्र का इंतखाब उस वक्त के अबूरी सदर जस्टिस अब्दुल सत्तार की क़यादत में किया गया था। तारीखी तज्ज़ियाकार मोहिउद्दीन अहमद के मुताबिक जियाउर रहमान को पार्लियामेंट हाउस के करीब दफन करने का मकसद मुल्क में कसीरुल जमाती जमहूरियत के आगाज और उनकी सियासी अहमियत को जाहिर करना था। इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में गैर मुस्लिम मर्दों के खतने को मुबैना मजहबी एजेंडे से जोड़ने के इल्जामात पर बहस छिड़ गई है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सीबीआई के साबिक डायरेक्टर नागेश्वरा राव ने रियासती वजीर सेहत को खत लिखकर दावा किया कि तिब्बी वजूहात की आड़ में गैर मुस्लिमों के खतने किए जा रहे हैं। रियासती वजीर सेहत ने मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है, ताहम तिब्बी माहिरीन और यूरोलॉजिस्ट ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक खतना सिर्फ मखसूस तिब्बी मसाइल जैसे फेमोसिस, इन्फेक्शन या ज़ियाबतीस से जुड़ी पेचीदगियों में किया जाता है और कोई डॉक्टर गैर ज़रूरी तौर पर ऐसा अमल नहीं करता। माहिरीन का कहना है कि खतना एक तिब्बी जराही अमल है जिसे मजहबी तब्दीली से जोड़ना दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक कोई शख्स सिर्फ खतना करवाने से मुसलमान नहीं हो जाता और इस मामले को मजहबी रंग देने की बजाय तिब्बी हकाइक की बुनियाद पर देखना चाहिए। पाकिस्तान के इलाके सवात की तारीखी इमारत वजीर हाउस, जिसमें गुज़िश्ता 4 दहाइयों से सेरीना होटल कायम था, 1 जनवरी 2026 से सरकारी तहवील में वापस ले ली गई है। ये इमारत 1985 में 30 साला लीज पर सेरीना होटल्स को दी गई थी, जो 2015 में खत्म हो चुकी थी। ताहम अदालती कार्रवाइयों के बाइस वापसी में मजीद 10 साल लग गए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कल्चर व सियाहत के मुताबिक ये 44 कनाल पर फैली इमारत इंतहाई कम किराए पर लीज पर दी गई थी, जो वक्त के साथ भी मार्केट रेट से कहीं कम रहा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मौजूदा लीज पॉलिसी के तहत मजीद तोसी मुमकिन नहीं थी, जिस पर सेरीना इंतजामिया ने दिसंबर 2025 में इमारत खाली करने पर रजामंदी जाहिर की। हकाइक क्या हैं जानते हैं अंदर की खबर रखने वाले साफी मुजम्मिल सौर वर्दी से। सरीना होटल सवात बड़ा पुराना, जो लोग सवात जाते हैं वो सरीना होटल सवात में रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि उसकी लीज़ नई केपी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की, 40 साल की लीज़ थी, वो 40 साल बाद ख़त्म हुई है। अब वो अपने 2 MPs को, फ़ज़ल हकीम को और अख्तर ख़ान को, वो देना चाहते हैं कि वो 2 MPs को ओब्लाइज कर रहे हैं कि वो होटल ले लें, और वो लीज़ जो है उन्होंने एक्सटेंड नहीं की है 40 साल बाद। अफसोसनाक बात है। इसको ही करप्शन कहते हैं, इसको कुर्बा परवरी कहते हैं, इसको सियासी रिश्वत कहते हैं। बजाय इसके कि आप मज़ीद इंटरनेशनल कंपनियों को ला के वहाँ इंटरनेशनल टूरिज़म के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होटल्स बनाएं। आपने जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल था वो भी अपने 2 MPs में बंदर बांट करने के लिए दे दिया है। इसकी क्या हम इसको कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ जंग है PTI की। बाकी वो जो बयानिया है, जो हकीकी आज़ादी है, वो यही है कि 2 MPs की नज़र थी सरीना होटल सवात पर, उन्होंने वो लीज़ आगे एक्सटेंड नहीं होने दी और MPA फ़ज़ल हकीम और MPA अख्तर ख़ान जो हैं वो अब सरीना सवात पर अपना होटल बनाएंगे। पहले आपको याद है सवात के जो दरिया है वहाँ पे दरियाए सवात, उसके ऊपर भी नाजायज़ तजावज़ात हैं। हर साल दरियाए सवात में जब सैलाब आता है होटल बहते हैं, फिर वो बासर लोग वहाँ होटल बना लेते हैं। तजावज़ात हैं, दरिया को क्लियर नहीं करते, कितने लोग मरे हैं पिछले साल, अब भी आप देख लें, लेकिन सुधरने का नाम नहीं।
याद रहे कि 1935 में वाली सवात मियाँ गुल अब्दुल वदूद के दौर में तामीर होने वाली ये इमारत रियासती गेस्ट हाउस रही, जहां मलिका एलिजाबेथ डोम समेत कई आलमी शख्सियात ने कयाम किया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वजीर हाउस को उसके तारीखी हुस्न को बरकरार रखते हुए शफाफ और ओपन बिडिंग के जरिए दोबारा लीज पर दिया जाएगा, जिससे सरकारी खजाने को खतीर आमदन की तवक्को है। नाजरीन, आज से आप एक दिन लाहौर में के नाम से एक नई सीरीज देखेंगे, जिसमें नाजरीन को पाकिस्तान के शहर लाहौर की गलियों, सड़कों और तारीख की सैर कराई जाएगी। इस सीरीज में शहर की तहजीबी, तारीखी और सकाफती अहमियत को सादा और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाएगा। सीरीज की पहली किस्त में अली काजमी लाहौर के 3 अहम मुकामात दाता दरबार, माल रोड और पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख, पस मंजर और समाजी अहमियत पर रोशनी डाल रहे हैं, और वो भी लाहौर की जुबान यानी पंजाबी में। सियाने आखदे ने ओ पैड़े ख्वाब दी होंदी ताबीर चंगी, ते फलां विचों फल कई हैं ऐसे ओ कानू कौड़े ते हुंदी तासीर चंगी। 1.25 करोड़ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। किसी एक जगह का नाम लेना तो थोड़ी ज्यादती वाली गल है, इस करके मैं एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। आओ देखते हैं। टावी क्रॉस करके जो लाहौर शहर से आइए तो फौरन ही हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्शता बाजार है। ਲਾਹੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਗਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਭੀਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੋਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਬੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਸਖੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਾਰੋ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। दाता दरबार तो थोड़ा जिहा अगे आइए तो माल रोड शुरू हो जाती है। माल रोड लाहौर शहर का कल्चरल सेंटर है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो इलावा लाहौर म्यूजियम, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अनारकली बाजार, लॉरेंस गार्डन, अलहमरा कल्चरल कॉम्पलैक्स ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਰ ਵੀ ਇसी ਸੜਕ ਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਰਨ ਲਾਹੌਰ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਡਾਢੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੰਟਿਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। भारत में मकबूलियत हासिल करने वाली फिल्म धुरंधर अगरचे पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, ताहम इसके बावजूद ये फिल्म सियासी हलकों से लेकर आम आवाम तक जेर बहस है। सोशल मीडिया, टीवी टॉक शोज और गैर रस्मी गुफ्तगू में फिल्म के मौजू और पस मंजर पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इन बहसों के बीचों बीच पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी वुसअतुल्लाह खान अपनी खसूसी राय पेश कर रहे हैं, जिसमें वो इस बात का जायजा लेते हैं कि बगैर नुमाइश के भी एक फिल्म पाकिस्तान में क्यों और कैसे तवज्जो का मरकज बन गई। सुनिए वुसअतुल्लाह खान का कलम बात से बात। धुरंधर का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर या प्रोडक्शन टीम का कोई भी मेंबर कभी कराची आए तो अपने रिस्क पर आए। किसी पाकिस्तानी सिनेमा में फरवरी 2019 के बाद से कोई भारतीय फिल्म नहीं लगी, फिर भी बिना देखे धुरंधर जितना रश यहाँ ले रही है आपकी सोच है। लियारी कराची में है और कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी शायद सोशल मीडिया पे मेरी तरह इसका ट्रेलर ही देखा होगा। उनका कहना है कि ये फिल्म नहीं बल्कि कराची बल्कि देश के खिलाफ दुश्मन की साजिश है। फिल्म के एक कैरेक्टर चौधरी असलम की विधवा नौरीन असलम ने कहा है कि उनके पति का कैरेक्टर संजय दत्त ने बिगाड़ के रख दिया है। अब वो सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए अपने पति की कहानी पे फिल्म बनाएंगी। सिंध के सूचना मंत्री शर्जील मेमन ने तो ऐलान भी कर दिया है कि लियारी का असली चेहरा और वहाँ की शांत जिंदगी दिखाने के लिए अगले महीने मेरा लियारी के नाम से हम एक सिंधी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। कहते हैं कि धुरंधर में पीपल्स पार्टी को आतंकवाद का समर्थक दिखाया गया है, लिहाजा पार्टी के एक सदस्य ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद और पार्टी का परचम बगैर इजाज़त दिखाने पे कराची की एक सेशन अदालत में धुरंधर की पूरी टीम पे मुकदमा कर दिया है। यानी अब पता चलेगा जब धुरंधर की टीम पेशियां भुगतने कराची आया करेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाइयों, इतने जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है, इस फिल्म को फिक्शन समझ के एंजॉय क्यों नहीं किया जा सकता। जिस सज्जन ने इस फिल्म की कहानी लिखी है या पूंजी लगाई है या डायरेक्ट किया है, उसने अपने नज़रिए से पैसा कमाने के लिए 12 मसाले की चाट बनाई है। वैसे भी बॉलीवुड में घुस के मारेंगे सीरीज़ की बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, एक और सही। अगर प्रोड्यूसर को रियलिटी दिखानी होती तो फिर वो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता, कमर्शियल फिल्म काहे को बनाता। 50 के दशक में जालिम ज़मींदार और मजलूम किसान बिक रहा था, 60 के दशक में रोमांस बिक रहा था, 70 के दशक में एंग्री यंग मैन बिक रहा था, इन दिनों राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद बिक रहा है, तो फिर मसला क्या है। हॉलीवुड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्मों में नाजी जर्मनों को बेवकूफ़ दिखा के कितना पैसा बटोरा। शीत युद्ध के 40 वर्ष में कौन सी ऐसी हॉलीवुड फिल्म थी जिसमें रशियंस को बुद्धू और ख़तरनाक नहीं दिखाया गया। अब अगर बॉलीवुड भी यही कर रहा है तो बाल की खाल निकालने की क्या तुक है। इंडस्ट्री का मकसद मुनाफा कमाना होता है, आप भी कमाओ अगर कमा सकते हो। हाँ, ख़ास नज़रिए के प्रचार के लिए भी दुनिया भर में फिल्में बनती हैं। इसके लिए ऐतिहासिक सच्चाई को सबसे पहले सूली पे चढ़ाना पड़ता है। जब सोने में खोट मिलाए बगैर जेवर नहीं बन सकता तो फिल्म में दर्शकों को लुभाने के लिए मिलावट क्यों नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मुग़ल आज़म अकबर की ज़बान तो फ़ारसी थी, ये पृथ्वी राज कपूर शुद्ध उर्दू क्यों बोल रहा है। अगर आप सच्चाई के इतने ही बड़े प्रचारक हैं तो फिर नॉवेल क्यों पसंद करते हैं। तो फिर फिल्म को पर्दे पे पेश होने वाला नॉवेल या अफसाना समझने में क्या आपत्ति है। और जिनके धर्म या संस्कृति का किसी फिल्म या ड्रामे में अपमान होता है, वही ऐसी फिल्म को रिमोट कंट्रोल के ज़माने में आखिर इतने ध्यान से क्यों देखते हैं। सच्चाई अगर है तो बस इतनी कि धुरंधर ने अब तक 500 करोड़ कमा लिया है। अब हमें आने वाले समय में एक नई भेड़ चाल देखने को मिल सकती है। तो क्या हर बार लिफाफा देख के ही भांपेंगे कि अंदर क्या लिखा है।
भले भारत हो या पाकिस्तान या कोई भी देश, हर कोई खुद को रेलेवेंट रखने के लिए कोई ना कोई फड़कता धड़कता मुद्दा तलाश करता है। सरकार को भी चाहिए और गैर सरकारी गुटों को भी और फिल्म बनाने वालों को भी, और कुछ ना सही तो कोई नई फिल्म ही सही। जीवन में बेशुमार दुख और मसले हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। परंतु जान छुड़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि नॉन इश्यूज़ को असली मुद्दों में बदल दो। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारगला नेशनल पार्क की हिफाजत में मसरूफ नगमाना इरम वाइल्ड लाइफ रेंजर हैं। वो न सिर्फ पार्क के जानवरों की देखभाल करती हैं, बल्कि पार्क की खूबसूरती और माहौल को बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। नगमाना अपनी शीरखार बच्ची के साथ ये जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं और अपने काम के दौरान पार्क के खतरनाक जानवरों जैसे तेंदुए से मुमकिना मुलाकात के तजर्बात भी शेयर करती हैं। तफसील उमर अजीज खान की इस रिपोर्ट में। जब मैं इस फील्ड में आई, वाइल्ड लाइफ की फील्ड, जो कोई भी सुनता था देखता था उसके जहन में यही आता था, जंगल का महकमा। भाई एक औरत जंगल में क्यों वो नौकरी करेगी। मेरा नाम नगमाना इरम है। मैं एज अ वाइल्ड लाइफ रेंजर यहाँ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में अपना खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ टीचिंग जो है उसको एक इज़्ज़तदार पेशा समझा जाता है, तो हर किसी का मशवरा मुझे यही होता था कि आप टीचिंग में क्यों नहीं गई, टीचिंग में चली जाती। टीचिंग तो इजी भी था, साथ में बच्चे भी हैं, वो भी जंगल में जाके करेंगी मर्दों के साथ। मैं सिंगल रेंजर हूँ यहाँ पर फीमेल एज अ मदर, तो यहाँ पर यह है कि मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। और ये बच्ची है, ये इसके साथ कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाता है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बच्चे इतने खुले माहौल में पल रहे हैं, फ्रेश आबो हवा मिल रही है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मुझे ऐसा अभी तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस की मैंने इस प्रोफेशन में। हमारा स्टाफ जो है माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, तो इस लिहाज से फिर मैं काफ़ी पुरसुकून हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल पार्क में जो ट्रेल्स है, ट्रेल 5 स्पेशली, इसमें बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आती हैं, हाइकिंग करने के लिए आती हैं। फिर मैं उनको इसके बारे में बताती हूँ कि ये आया नेशनल पार्क है क्या, इसके कवानीन क्या हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, और जो चीज़ें यहाँ पर कानूनन मना हैं, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो कुछ मना है वो उनको मैं इन्फॉर्म करती हूँ, और जो चीज़ें नहीं ले जानी वो उनको मैं रोक लेती हूँ। ये मेरा काम है। यहाँ पर खाना मना नहीं है, प्लास्टिक इशू है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एनिमल्स हैं, तो वो फिर जब प्लास्टिक आप फेंकेंगी तो वो खाएंगे, फंसेंगे। कई एनिमल्स की डेथ भी इसी वजह से होती है। आग लगती है यहाँ पर, उस हवाले से भी लोगों को मैं आगाही फराहम करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं लेके जानी, जिससे जहाँ जंगल में आग लगने का ख़तरा है, जैसे कि सिगरेट हो गया, लाइटर हो गया, माचिस हो गई। कई लोग ऐसे हैं, उनको जब मैं गाइड करती हूँ कि यहाँ पर इस तरह के एनिमल्स हैं, अगर आपके रास्ते में अगर लेपर्ड आ भी जाए तो आपने डरना नहीं है, ना ही उसको मारना है, ना ही शोर करना है, बल्कि आपने सुकून से खड़े हो जाना है। वो अपना, लेपर्ड आपको पता है एक शाय एनिमल है, नॉकटर्नल है, वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लिहाजा आपने उसको मारना नहीं है, ना ही उसके ऊपर धाड़ना है, वो आराम से अपना रास्ता लेके चला जाएगा। पर्सनली जो आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत शौक़ है लेपर्ड देखने का। मैं कहती हूँ कि मुझे एक दफ़ा नज़र आ जाए, मैं देख लूँ, उसकी ग्रीनरी बरकरार है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन की वजह से, जो हम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में जो हैं रेंजर्स वगैरह, वो सब इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसमें परिंदे, इसमें जानवर, ये सब कुछ जो है वो हमारी प्रोटेक्शन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बरकरार है। तो अल्लाह ताला ने मुझे नेचर से इतना करीब किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा पसंदीदा काम मुझे मिल गया है, टीचिंग से भी ज़्यादा अच्छा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।